جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں وضو کرنے کے ارادے سے اٹھ گئی تھی۔ میرے ابو جو پہلے ہی مسجد کے امام تھے وہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ اماں بھی نماز کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے چھوٹی بہن کو اٹھایا جو اس وقت بھی سونے میں مصروف تھی۔ اماں کو اس کا بے وقت کا سونا ایک آنکھ نہ پاتا تھا، لیکن وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے لاڈلی بھی تھی۔ میں اماں کو منع کرتی کہ اسے کچھ بھی نہ کہا کریں، وہ خود ہی نماز کی پابند ہو جائے گی، لیکن اماں کو ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ جیسے ہی میں اور اماں نماز سے فارغ ہوئے، ابا بھی تھوڑی دیر بعد گھر تشریف لے آئے۔ میرے ابا اس عمر میں نورانی چہرہ لیے ایک بارش انسان تھے۔ ان کی محلے میں بہت عزت تھی کیونکہ وہ مسجد کے امام تھے۔ بھلے ہی ہمارا گھرانہ غریب تھا، لیکن کبھی بھی میرے ابو نے کسی سے 1 روپیہ ادھار نہ لیا تھا۔ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم چاروں عزت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ابا کی معمولی تنخواہ میں بھی ہم چاروں کا بہت اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں حافظ تو نہ بن سکی، لیکن مجھے قرآن کی کئی سورتیں زبانی یاد تھیں، اس لیے دین کی طرف زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے ہر وقت میری زبان پر کسی نہ کسی سورت کا ورد ہوتا تھا۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ چھوٹی بہن کا نام کشمالہ تھا، جو صرف مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ 2 بہنیں اور امی ابو کے ساتھ ہمارا گھرانہ مکمل تھا۔ ابا کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا، اسی وجہ سے میرا رجحان بھی مذہب کی طرف بہت زیادہ تھا، لیکن کشمالہ مذہب کے معاملے میں تھوڑی سی سست تھی۔ جب بھی تو اس نے ضد کر کے میٹرک کرنے کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ میں نے اماں ابا کے کہنے پر صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اماں کے ساتھ گھرداری میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اگرچہ اب میری شادی کی عمر ہو چلی تھی، لیکن ابھی تک ایک بھی رشتہ نہ آیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہمارا گھر غربت کے اس پیمانے پر تھا جہاں پر جہیز کے نام پر لڑکیوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا ہی میرے ساتھ تھا، کیونکہ نہ تو ابا کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ مجھے میٹرک بھرا ٹرک بھرا جہیز دے سکے، اور نہ ہی ابا کے ورثے میں کوئی زمین جائیداد ملی تھی کہ جسے بیچ کر وہ میری شادی کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ رشتے کے انتظار میں بھی ابھی گھر بیٹھی تھی، گو کہ اماں ابا ہر وقت میری ہی شادی کی بات کرتے رہتے تھے۔ اماں اس وجہ سے پریشان رہتی کہ کہیں میری عمر نکل جائے، حالانکہ ابھی میں صرف 20 سال کی تھی، لیکن پھر بھی اماں کے اوپر عجیب سی مایوسی طاری رہتی۔ وہ یہی سوچتی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی رشتہ لے کر نہ آئے گا۔ میں اکثر چپکے ان دونوں کی باتیں سنتی جو وہ دونوں آپس میں کیا کرتے تھے کہ شمائلہ 20 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں آیا۔ میں یہ سوچ کر اداس رہتی کہ میرا کیا نصیب اس قدر خراب ہے کہ اماں ابا میری وجہ سے یوں پریشان رہتے ہیں۔ اداسی بھرے دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے جب اچانک ہمارے گاؤں پر ایک مصیبت آن پڑی۔ اس سال بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اچانک ہی سیلاب کا بہاؤ ہمارے گاؤں کی طرف ہو گیا۔ یوں گاؤں کی مسجد میں اعلان ہونے لگا کہ جلد سے جلد اس گاؤں کو خالی کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سب سیلاب کے زیر اثر آ جائیں۔ پورے گاؤں میں ایک خوف بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک شخص جلدی سے اس گاؤں سے جانا چاہتا تھا، کیونکہ سیلاب کا خوف سب کے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ ایسے میں میرے ابا بھی پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ انہوں نے معمولی سامان باندھنے کو کہا، پھر ہم دونوں کے ساتھ لے کر اس گاؤں سے نکل آئے۔ ابا کا کوئی جان پہچان کا رشتہ دار بنا تھا، جو بھی رشتہ دار تھے وہ کسی دوسرے صوبے میں رہتے تھے۔ نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم اتنا زیادہ کرایہ لگا کر اپنے کسی سے گھر رہ سکتے، اس لیے گاؤں سے تھوڑی سی دور ایک شہر میں آ گئے۔ یہاں پر گاؤں کے ایک پرانے جاننے والے رہتے تھے۔ ان کی مدد سے ابا نے ایک پرانا سا گھر لیا اور ہم دونوں کے ساتھ اس میں رہنے لگے۔ وہ گھر کسی نہ تھا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہے، اس کا مالک کسی حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ یوں جب سے یہ لاوارث حالت میں پڑا تھا، جیسے ہی ہم اس گھر میں آئے تو مجھے اس گھر کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ گھر میں 4 کمرے تھے، لیکن گھر کی دیواروں سے عجیب ویرانی اور بوسیدگی ٹپک رہی تھی۔
घर के सहन में बीचों बीच खड़ा वो पुराना सा दरख्त जिसकी शाखें ज़मीन को छू रही थीं, उसे देखकर खौफ महसूस होता था। अम्मा को इस घर को देख देख कर हौल उठ रहे थे। अब्बा से दबे लहजे में कहने लगी, इस घर को देखकर मुझे अजीब से ख्यालात आते हैं। ऐसा तो नहीं कि सालों से बंद पड़े इस घर में किसी आसेब वगैरह का असर हो, लेकिन अब्बा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई मखलूक इस घर में रहती भी होगी तो वो हमारी नमाज कुरान पढ़ने की वजह से यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी हूँ। तुम दोनों भी नमाज पढ़ने की पाबंद हो। और फिर हमारी बेटी शुमाइला तो नमाज पढ़ने बगैर सोए की भी नहीं, उठते ही कुरान की तिलावत करती है। ऐसे में इस किस्म के ख्यालात अपने दिमाग में पैदा ना कर। अब्बा के इस तरह कहने पर मैं और अम्मा खामोश हो गए थे, लेकिन घर में फैले हुए खौफनाक सन्नाटे और वहशत ने सच में ही मेरे औसान खता कर दिए थे। शुमाइला तो थी ही सदा की डरपोक। कहने लगी, बाजी मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा। मजबूरी में भले ही हम इस घर में आ गए हैं, लेकिन देखा हमारे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। आपको पता है मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। इसकी इस बात ने मुझे खौफ ज़दा कर दिया था, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी। कहने लगी कि इस वक्त परेशानी का आलम है। अब्बा अम्मा के सामने ऐसी बातें ना करो। तुम्हें मालूम है कि हमारे हालात कैसे हैं। ना सिर्फ ठिकाना छिन गया, बल्कि ऐसा लगता है अब कभी दोबारा हम गांव वापस ना जा सकेंगे, क्योंकि अब्बा अम्मा को बता रहे थे कि पूरे गांव में सैलाब आया है और घर में मौजूद पानी छतों को छोड़ रहा था, जिसकी वजह से अक्सर गांव के घर डूब चुके हैं। कशमाला ये सुनकर रोने लगी। वो वाकई ही बड़ी डरपोक थी, लेकिन मैं उसे तसल्ली देने में मसरूफ़ थी। एक दिन नमाज पढ़कर सोई तो आधी रात को आँख खुल गई। प्यास से हलक सूख रहा था। अब्बा अम्मा दूसरे कमरे में सो रहे थे, जबकि मैं और कशमाला इस छोटे से कमरे में सोए थे। कशमाला गहरी नींद में थी। मैं इसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए नाचार खुद ही अकेली उठकर किचन में आई और फिर चूल्हे के करीब रखे हुए घड़े से पानी निकालकर पीने लगी। पानी पीते पीते अचानक ही पलटी थी, क्योंकि मुझे दरख्त के नीचे किसी का साया दिखाई दिया था। ऐसे लगा जैसे मुझे देखकर वो साया बिल्कुल आखिर में बनी हुई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता चला गया हो। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कशमाला की बताई हुई बात इस कदर सच साबित होगी। आज मैंने अपनी आंखों से साए को देख लिया था। मैं अपनी आंखें मसलने लगी कि कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो इस साए को सीढ़ियों की तरफ भागते देखा था। ज़मीन पर ऐसे जमकर खड़ी थी कि अगर थोड़ी सी हिली तो शायद गिर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से कदमों को घसीटते मैं बिस्तर तक आई थी। जितनी भी सूरतें मुझे ज़बानी याद थीं, इन्हें पढ़ पढ़ कर खुद पर दम करने लगी। फजर की अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी, तब ही मुझे नींद आई। लेकिन मैं किसी सूरत भी नमाज पढ़े बगैर सोना नहीं चाहती थी, इसलिए इस वक्त उठी, हिम्मत करके अकेले ही सेहन में गई, वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते पढ़ते हुए अजीब से ख़यालात आ रहे थे। इस साए का यूं तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागना, मेरा पलट कर उसे देखना मुझे बार बार खौफ दिला रहा था। वो जब सूरज सर पर आन पड़ा तब अम्मा ने झिंझोड़ कर मुझे उठाया था। मैं थकी थकी सी निगाहों से इन्हें देख रही थी। पूरी रात जागने की वजह से मेरी आंख खुली नहीं थी। अम्मा कहने लगी, कितना सोगी कशमाला, तुम तो सुबह सवेरे उठने की आदी हो। सुबह नमाज पढ़ी थी या नहीं? तब मैंने कसमंदी से अम्मा को जवाब दिया कि हाँ अम्मा, मैंने नमाज पढ़ ली थी। अम्मा, अब्बा या कशमाला को रात वाली बात बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने किसी के सामने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि घर के दीगर काम निपटाती रही। असर का वक्त था जब मैं तिलावत कुरान पाक कर रही थी, जब पड़ोस की एक औरत आई। इसने मुझे ये कुरान पढ़ते हुए देखा तो इससे कहने लगी, माशाल्लाह बहन, तुम्हारी बेटी की आवाज़ किस कदर दिलकश है।
اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا ہے۔ ایک بات کہنی تھی تم سے، برا مت ماننا، ہمارے پورے محلے میں ایک بھی ایسی معلمہ نہیں جو بچیوں کو قرآن پاک پڑھا سکے۔ اسی وجہ سے اکثر مائیں اپنی بیٹیوں کو باہر قرآن پڑھنے نہیں بھیجتی، کیونکہ یہاں سے مدرسہ کافی، لڑکے تو آرام سے چلے جاتے ہیں لیکن بچیاں جو 12 یا 11 سال کی ہوں وہ اتنی دور نہیں جا سکتی۔ اگر تم اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ ان بچیوں کو قرآن پاک پڑھا دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی، اس طرح سے اسے ثواب بھی ملے گا اور بچیاں بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیں گی۔ تم جانتی تو ہو کہ آج کل ماحول اتنا اچھا نہیں کہ جوان بچیاں گھروں سے باہر جا کر کسی دور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں نے فوراً ہی اماں کے سامنے رضامندی ظاہر کی۔ ویسے بھی بچپن سے میرا سپنا تھا کہ میں کسی سکول میں استانی بنوں، لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا تھا۔ ایسے میں بچیوں کو مدرسے میں پڑھا کر میں اپنا یہ خواب پورا کر سکتی تھی۔ میں تو کسی سے بھی کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس عورت کا اصرار تھا کہ مناسب معاوضے پر میں ان کے محلے میں رہنے والی ساری بچیوں کو دینی تعلیم دے سکتی ہوں۔ دوسرے دن ہی میرے پاس 2 بچیاں قرآن پاک کی تعلیم لینے آئی تھیں تو میں انہیں پوری دلچسپی سے پڑھانے لگی۔ میرا ڈر خوف تو جیسے بالکل دور ہو گیا تھا۔ میں ہر لفظ تلفظ سے پڑھا کر اپنا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ ابا یہ دیکھ کر بہت خوش تھے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا تم نے تو میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ آج میری بیٹی نے جو تعلیم خود حاصل کی ہے وہ دوسروں کو دے کر اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ میں ابا کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں تو بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی، لیکن کشمالہ کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ اکثر ابا اماں سے اپنے سر درد کی شکایت کرتی، بار بار اماں سے کہتی کہ مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں لگتا، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، لیکن اماں اسے جھڑک کر خاموش کروا دیتی، کہتی کہ اپنے ابا کو پریشان نہ کرو، وہ پہلے ہی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک دن آدھی رات کو میں اپنے کمرے میں سوئی تھی جب مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی آتا جاتا نہ تھا۔ یوں تو اس گھر میں 4 کمرے تھے، لیکن ہمارے استعمال میں صرف 2 ہی تھے۔ ویسے بھی ہماری فیملی بہت چھوٹی تھی، دیگر کمروں کا استعمال ہماری ضرورت سے زیادہ تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر آدھی رات کو قرآن پاک پڑھنے والا کون ہے۔ آواز مردانہ لیکن بہت دلکش تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں ابا تو نہیں جو مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے گھر پر ہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آواز بہت جوان اور اجنبی تھی۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور صحن میں چلی آئی۔ میرے جسم میں واضح لرزش تھی کیونکہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے یا پھر 3۔ ایسے بھی اس کمرے میں کون تھا جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھا؟ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی یا مشکل کانپتے وجود کے ساتھ اس کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازے پر باہر کی طرف سے صرف کنڈی ہی لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کنڈی کو کھول کر دروازے کے پار دیکھوں تو صحیح کہ آخر کون ہے اس قدر دلکش انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن خوف مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا کیونکہ یہ بات تو واضح تھی کہ باہر سے کوئی بھی اندر داخل نہ ہوا۔ باہر لگی کنڈی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں پر کوئی 5واں انسان موجود نہ تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی، اس سے پہلے کہ دروازے پر لگی کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھاتی اچانک ہی کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک زوردار چیخ میرے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی پیچھے پلٹی تھی۔ وہ ابا ہی تھے جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں گڑبڑا کر رہ گئی، بمشکل ابا سے کہنے لگی ابا مجھے اس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، لیکن اب کوئی بھی آواز نہ آئی تھی۔ شاید میں نے کسی کی عبادت میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا چلو کمرے میں جا کر آرام کرو، ویسے کسی بھی چیز پر دھیان مت دو جو مخلوق ہمیں تنگ نہیں کرتی، ہمیں بھی اسے اس کے عمل سے نہیں روکنا چاہیے۔ ابا کی بات سن کر میں بری طرح لرز گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابا یہ سب جانتے تھے، شاید انہیں بھی یہاں پر کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ فجر کی اذان جب تک کانوں میں نہ آئی میں بستر سے نہ اٹھی، پھر اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔
नमाज पढ़ते ही मैं बिस्तर पर लेटी तो गहरी नींद ने मुझे आ लिया। दिन चढ़े तक मैं सोती रही। जब आँख खुली तो मैंने सुना जब अम्मा अब्बा से कह रही थी कि न जाने शुमाइला को आजकल क्या हो गया है, दिन चढ़े तक सोती रहती है। मैं देख रही थी कि अब्बा ने अम्मा को कोई भी जवाब नहीं दिया। खामोशी से वो काम पर चले गए थे। घर के हालात इतने भी ठीक न थे क्योंकि अब्बा को यहाँ पर मस्जिद में तो कोई काम ना मिल सका था, इसलिए वो एक दुकान पर काम कर रहे थे जो किताबों की दुकान थी। दुकान किसी और की थी, चूँकि दुकान का मालिक एक अमीर आदमी था, इसलिए उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। अब्बा दुकान पर ही मुलाजमत करके घर का खर्च किसी न किसी तरीके से चला रहे थे। सर्दियों की आमद थी, इसलिए फ़िज़ा में खनकी सी थी। ऐसे में मौसम कभी बहुत सर्द हो जाता तो कभी गर्मी का एहसास पैदा होता। कशमाला की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए अम्मा इसे लेकर एक सरकारी क्लिनिक पर चली गई थी। अब्बा भी हस्बे मामूल दुकान पर थे। मैं अकेली ही बच्चियों के साथ दरख्त के नीचे बैठी इन्हें कुरान पाक का सबक दे रही थी। जब मुझे अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ, ऐसे लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पूरे घर में एक नज़र दौड़ाई थी। मैंने देखा 2 बच्चियां आपस में बात कर रही थी। वो मेरी तरफ देखकर हंस हंस कर बातें कर रही थीं। मैं समझ न सकी कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही हैं। तभी मुझे गुस्सा आया तो मैंने इन्हें कहा कि तुम दोनों क्यों हंस रही हो। तो वो कहने लगी, बाजी क्या आपकी कोई जुड़वा बहन भी है? अभी जब आप उठकर गई थी तो सामने कमरे में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो आपको हमने सीढ़ियों से वापस आते देखा था। इन दोनों छोटी बच्चियों की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कांपती हुई लहजे में इन्हें कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी अभी तो कमरे में गई थी, वो भी तुम्हारे सामने। तो फिर तुमने वहाँ किसको देखा था? वो बच्चियां बार बार इस बात पर इसरार कर रही थीं कि हमने आपको सीढ़ियों से आते देखा था, हालांकि आप पहले कमरे में थीं। मेरे पास आने वाली बच्चियां तादाद में काफ़ी ज़्यादा थीं। दीगर तो कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ थीं, लेकिन वो दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं। इनकी मासूम बातों से मैं हरगिज़ इनकार न कर सकती थी। न जाने वो किसी वहम का शिकार थी या सच में ही इन्हें मेरी शक्ल में वहाँ कोई नज़र आया था। सारी बच्चियों की छुट्टी हो गई। मैं अकेले ही घर में मौजूद थी। अम्मा और कशमाला अभी तक नहीं लौटी थीं। बार बार दोनों बच्चियों की बात मेरे जहन में गूंज रही थी। मैं दुआ करने लगी कि अम्मा जल्द ही वापस आ जाएं। यूँ अकेले इस बड़े से घर में मुझे डर लग रहा था। मैं दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर ही लेट गई। मुंह तक कपड़ा ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। अभी तक आंख लगी थी कि अचानक मुझे तेज़ खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई मेरे करीब से गुजरा हो। मेरी फौरन ही आंख खुल गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। मुझे लेटे हुए 10-15 मिनट ही तो हुए थे। ऐसे में इतनी तेज़ खुशबू का आना मुझे खौफज़दा कर गया था। शाम के साए भी फैलने को थे क्योंकि असर की अज़ान होने वाली थी। फिर मैंने अंदर कमरे में जाने का सोचा। अभी उठने ही लगी थी कि अचानक इसी बंद कमरे का दरवाज़ा ज़ोर अंदाज में खुलकर बंद हुआ था। मैं फ़ौरन ही पीछे पलटी थी। मैंने अपनी आँखों से इसे खुलकर बंद होते देखा था। खुद ब खुद कुंडी ऐसे लगी जैसे किसी ने वहाँ पर खड़े होकर लगाई हो। अब मैं सर पट कमरे में दौड़ी थी। घुटनों में मुँह छुपाकर दिल ही दिल में कुरानी आयात का विरद करने लगी। सोचने लगी अगर ऐसी कोई शैतानी मखलूक यहाँ पर है तो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मैंने फैसला किया जैसे ही अब्बा घर आएंगे तो मैं इन्हें ये सब बताऊंगी। यूँ इस तरह से इस मखलूक के साथ इस घर में रहना मेरे लिए तो नामुमकिन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो मुझे ही महसूस होती थी। क्योंकि अब्बा इसके बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने अब्बा या कशमाला के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था। अचानक ही बाहर ज़हन का दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला तो अम्मा और कशमाला थी। कशमाला कुछ थकी थकी सी महसूस थी। मैं ख़ाइफ निगाहों से अम्मा को देखते हुए कहने लगी, आपने इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अम्मा कहने लगी, क्या करती, सरकारी क्लिनिक पर इतनी लंबी लाइन थी, बारी ने भी बहुत वक्त लग गया। कशमाला ने गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा। कहने लगी, बाजी आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कि आपने कोई भूत देख लिया है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप किचन में आ
کیونکہ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی چائے کا پانی رکھ کر ان کے لیے چائے بنا دیا کرتی تھی۔ شام کو ابا آتے تو کچھ تھکے تھکے سے محسوس ہوئے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں ان سے کہہ نہ سکی کہ میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ وہ خوف بھی تھا جو مجھے اس گھر سے بار بار جانے پر مجبور کرتا تھا، لیکن ابا کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں دل کی بات نہ کہہ سکی اور حسب معمول کئی باتوں کی طرح اس بات کو بھی دل ہی دل میں دبا کر رہ گئی۔ لیکن ایک دن حیران رہ گئی جب وہ محلے میں رہنے والی ایک خاتون میرا رشتہ لینے اماں ابا کے پاس آئی۔ اماں کو تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جہاں آ کر میرے نصیب کھل جائیں گے۔ وہ خاتون بار بار اماں سے کہنے لگی کہ انہیں میرے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کوئی دیندار لڑکی کی تلاش ہے۔ گو کہ ان کا بیٹا بہت پڑھا لکھا اور اچھی نوکری پر ہے، لیکن پھر بھی انہیں کسی ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو بہت دیندار اور نیک فطرت ہو۔ انہیں میری صورت میں وہ لڑکی مل گئی۔ ابا میری رضامندی پوچھ رہے تھے۔ میں نے کوئی خواب آنکھوں میں سجا رکھے تھے، اس لیے ابا سے کہہ دیا کہ جو آپ کو مناسب لگے وہی فیصلہ کر لیں۔ یوں اماں ابا نے اس خاتون سے رشتہ طے کر دیا۔ ایک بار جا کر ابا لڑکے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کشمالہ بہت خوش تھی، میرے پاس آ کر بار بار مجھے چھیڑنے لگی کہ اب تو آپ پرائی ہو جاؤ گی باجی، لیکن میں خوش ہوں کہ تم اسی محلے میں رہو گی۔ اچھا ہے، میں روز تمہارے گھر آیا کروں گی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی، نہ جانے بنا کہ وہ شعلہ بار نگاہیں مجھے کس قدر نفرت سے گھور رہی ہیں۔ مجھے اپنے آس پاس کسی جلن کا احساس ہوا تھا، جیسے کسی کی آنکھوں کی تپش مجھے جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ عجیب سی بے چینی بھرے انداز میں میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے آس پاس تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا؟ میں اس وقت کوئی بھی بات سوچنا نہیں چاہتی۔ گمانی میں مبتلا میں نئے نئے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں سوچنے لگی، پھر جیسے ہی اس رات میں سوئی تو ایک ناخوشگوار احساس کے تحت آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نظر کشمالہ پر پڑی جو بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی میں اٹھ کر بیٹھی، لیکن حیران رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا اور اس کے دونوں پٹ کھلے پڑے تھے۔ میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی، اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے جھانک کر مجھے دیکھا ہو۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ اس سوچ نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا پتا کسی چور نے دروازہ کھولا ہو۔ کسی کا جھانکتا ہوا عکس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے باہر کی طرف آئی تو میری نظر درخت پر پڑی، جس کے نیچے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح دکھائی دینے والا تھا، بلکہ جس طرح سے اپنی سفید آنکھوں سے گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے سر سے پاؤں تک مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں کسی بت کی طرح کھڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کی سفید آنکھوں نے مجھ پر کیا اثر کر ڈالا تھا کہ میں وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی جیسے ہی درخت کے نیچے گئی، اچانک ہی جسم زوردار جھٹکا لگا۔ میں درخت کے نیچے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں وہاں بے ہوش پڑی رہی، مجھے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ ہوش آیا تو اماں مجھے پریشان نظر آئی۔ وہ مجھ پر کچھ دم کر کے پھونک رہی تھی۔ کشمالہ بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا تم رات کو بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ آخر اس درخت کے نیچے رات کی آدھے پھر کیا لینے گئی تھی تم؟ میں سوچنے لگی کہ کل ہی تو میری بات پکی ہوئی تھی، آج یوں بستر سے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں اسی وجود کا خیال آیا جس کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں لال انگارے کی طرح ہو رہی تھیں۔ کشمالہ مجھے خوفناک نظروں سے دیکھتے کہنے لگی، باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ بہت بدلی بدلی لگ رہی ہیں۔ میں نے اس کی ایک بات کا کوئی جواب نہیں دیا، گھٹنوں میں منہ چھپائے
बैठ गई। सोचने लगी कि अब्बास से पहले भी कहा था कि ये घर ठीक नहीं है। रात को तो जो कुछ मेरे साथ हुआ था इसे मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अब तो मुझे इस बात पर 100% यकीन था कि कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझ पर हावी हो चुका है। वो हर जगह मुझे दिखाई देता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। अब मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अम्मा बार बार मुझे कुरान पाक पढ़ने का कहती। इनके कहने पर मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती, लेकिन ऐसा लगता जैसे किसी की सफ़ेद आंखें मुझे कहीं ना कहीं देख रही हैं। फिर इस रात मैं सोई तो आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई, जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में उठकर गई। इसी कमरे की कुंडी खोलकर इस कमरे में दाखिल हो गई। वहाँ जैसे ही दाखिल हुई मेरे जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा था, क्योंकि वहाँ कमरे से आने वाली खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए थे। इतना पाकीज़ा माहौल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था। एक तरफ चाय नमाज रखी थी, साफ़ सुथरा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई रहता आ रहा हो। गर्द का तो नामो निशान भी न था। इतनी खुशगवार महक इस पूरे कमरे से आ रही थी। मैं किसी बुत की तरह खड़ी वहाँ काम माहौल देखे जा रही थी। मुझे जो कुछ महसूस हुआ था ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक है जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सिर्फ मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। अब तक वो मेरे सामने ना आया था। तभी मैं भर्राए हुए लहजे में कहने लगी, कौन है यहाँ, कौन रहता है, आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आता, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक किसी के बोलने की आवाज़ आई, लेकिन वो ज़बान कौन सी थी मैं समझ ना पाई थी। हाँ, किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ ज़रूर, जैसे किसी ने मेरी बात का जवाब दिया हो। खौफ की एक शदीद लहर मेरे वजूद से उठी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके वहाँ खड़ी थी। कमरे में एक खिड़की थी जिसके टूटे हुए सुराख से रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। इसी रोशनी से इस कमरे के सारे मनाजर वाजे थे। इससे पहले कि मैं पीछे पलटती, अचानक ही मुझे एहसास हो गया जिससे मेरे पीछे कोई खड़ा है। बिलाखिर इसने खुद को मेरे सामने जाहिर कर लिया था। खौफ के बाइस मैं पीछे पलट भी नहीं पा रही थी। पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि आखिर कौन है मेरे पीछे, कौन सी मखलूक है मुझे इस कदर डरा रही है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलटी वहाँ कोई भी ना था। हाँ, लेकिन इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। इससे पहले कि मैं इस कमरे से बाहर आती, अचानक ही दरवाज़ा किसी ने ज़ोर अंदाज में बंद कर दिया। मैं इस कमरे में कैद होकर रह गई थी। खुद ही यहाँ चल कर आई थी सिर्फ इसी खोज की वजह से कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो इस तरीके से बंद था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई ताकत लगाकर इसे खोलने ना दे रहा हो। अब रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। मैं सोचने लगी, सुबह होने में न जाने कितना वक्त है, अब मुझे यहीं पर इंतज़ार करना होगा। जब तक अम्मा ना उठती तो ये दरवाज़ा ना खुलना था। मैं वहीं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। खौफ के मारे घुटनों में मुंह छुपा लिया। अचानक ही एक सरगोशी सी कान में सुनाई दी, मैं सिर्फ तुम मेरी हो। मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा, कौन है यहाँ? जवाब में गूं गां की आवाज़ भरी थी। मैं हैरान थी कि आखिर इस कदर बहादुर कैसे हो गई जो अकेले ही आज इस कमरे में बैठी हूँ। मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरा इतना कहना था कि अचानक सामने बनी दीवार पर एक शबीह सी उभरने लगी। लंबा चौड़ा दिखने वाला वजूद ऐसा नज़र आ रहा था जैसे इस रात मैंने इस दरख्त के नीचे देखा था। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा वजूद तो हिल भी नहीं पा रहा था। काश मैं उठकर यहाँ से भाग सकती, लेकिन मैं किसी मुजस्मे की तरह वहाँ बैठी रही। तभी दीवार पर बनने वाला वो वजूद अचानक ही दीवार से बाहर निकला था। इसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार की। बिलाशुबा वो शक्ल और सूरत में बेइंतहा हसीन था। मेरा दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। आज उसने अपने आप को मेरे सामने जाहिर कर दिया था, लेकिन उसकी नज़रों में मेरे लिए मेहरबानी थी। मैं उससे कहने लगी, कौन हो तुम? वो सपाट लहजे में कहने लगा, तुम्हारा आशिक जिन्स। मैं सालों से इस घर में रहता रहा था, इस घर में तन्हाई का आदी हो गया था। मेरे खौफ से तो यहाँ कोई एक रात भी ना गुजारने को तैयार था,
लेकिन जब से तुम यहाँ इस घर में आई, मैंने तुम्हारी कुरान पाक की तिलावत सुनी तो मैं तुम्हारा आशिक हो गया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी नेक लड़की नहीं देखी थी जिसकी रोशन पेशानी इस कदर खूबसूरत थी कि उसे एक बार देखने के बावजूद दिल न भरे। यूँ मैंने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को इस घर में रखने का फ़ैसला कर लिया। मैं तुम्हें हरगिज़ यहाँ से कहीं जाने नहीं देना चाहता, इसलिए तो मैंने अपनी मौजूदगी का एहसास सिर्फ तुम्हें ही दिलाया था। आज तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या तुम्हारे किसी ख़ानदान वाले के साथ पेश नहीं आया। मैं एक मुसलमान जिन हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। हाँ, लेकिन किसी बुरे इंसान की मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसी कमरे में रहता हूँ, बाकी ये पूरा घर मेरा ठिकाना है। आज से नहीं, सालों से इस घर में रहता आ रहा था। पहली बार मैंने किसी इंसान को इस कदर दीन की तरफ राग़िब देखा तो तुम्हें अपना दिल दे बैठा, इसलिए तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। अब मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगा। अगर तुमने कहीं भी शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम पर ज़ाहिर हो जाऊँगा। क्यों, कोई भी इंसान तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। जिस तरह तुम एक नेक लड़की हो, इसी तरह मैं भी एक नेक जिनजाद हूँ। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो ठीक नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो इससे शादी से इनकार कर दो, क्योंकि वह पहले ही बुरे किरदार का मालिक है। इससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर तुमने फिर भी शादी कर ली तो कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारी शादी से ना हो पाएगी। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं किसी नेक वजूद की तलाश में था। तुमने अपना अक्स देखता हूँ, इसीलिए तुमसे मोहब्बत कर बैठा। अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसकी ये हैबतनाक बातें मेरा दिल दहरा रही थी। वो बोलता हुआ बिल्कुल इंसान लग रहा था, लेकिन दर हकीकत वो एक जिन था। इस घर में जिन्नात का ठिकाना था। ये बात ना अब्बा को मालूम थी ना ही। हाँ, लेकिन पहले दिन से ही इसकी मौजूदगी का एहसास था। फिर वो खौफनाक लहजे में कहने लगा, अब सुबह के आसार फैलने वाले हैं, मेरी भी नमाज का वक्त हो गया है। तुम भी नमाज पढ़कर सो जाओ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। तुम्हें किसी बुत की तरह उठी, कमरे में आकर लेट गई। अजान की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। ये सच था, मैं पहले की तरह ना डरी थी, लेकिन इस बात का एहसास कि वो जिनज़ादा मुझ पर आशिक है मुझे खौफ दिला रहा। अगर अम्मा अब्बा के सामने उसने खुद को जाहिर किया तो वो कितने परेशान हो जाएंगे। मैं पहले ही नहीं, हर किस्म की परेशानी से बचाना चाहती थी। सुबह हुई तो अम्मा और कशमाला जोश खरोश से मेरी शादी की बातें कर रही थीं। तब अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि अम्मा मुझे शादी नहीं करनी, वो लड़का ठीक नहीं है। अम्मा हैरान थी, कहने लगी, तू ये सब क्यों कह रही है? तेरा अब्बा ने तो सब कुछ मालूम करवा लिया है, वो लड़का बिल्कुल ठीक है। सुबह हुई तो कशमाला जोशो खरोश से मेरी शादी की बातें कर रही थी। तब अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि अम्मा मुझे ये शादी नहीं करनी, वो लड़का ठीक नहीं है। अम्मा हैरान थी, कहने लगी, तू ये सब क्यों कह रही है? तेरे अब्बा ने तो सब कुछ मालूम करवा लिया है, वो लड़का बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तू ब्याह कर इसी हवेली में, इसी मोहल्ले में चली जाएगी तो तेरी खबरगिरी इनके ये मुझे परेशानी नहीं होगी। इनका हैरान होना तो बनता था, लेकिन मैं खामोश थी। जिनज़ादे ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो मेरे ऊपर हावी होकर अपने आप को सब के सामने जाहिर कर देगा। फिर जैसे ही शाम को अब्बा घर आए तो अम्मा ने हर बार इन्हें सब कुछ बता दिया। अब्बा ने मुझे बुलाया, कहने लगे, बेटा तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं तय करना चाहता था, इसलिए तो मैंने सबसे पहले तुमसे पूछा था, लेकिन अब तुमने ये बात करके मुझे दुखी कर दिया है। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए इस लड़के की जांच पड़ताल ज़रूर करूँगा। फिर दूसरे दिन अब्बा आए, इनके चेहरे पर परेशानी थी। वो मेरे सामने ही अम्मा से कहने लगे, शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने इस लड़के के ऑफिस से पता करवाया तो 3-4 लोगों ने मुझे बताया उसका उठना बैठना गलत लोगों में है। शुक्र है शुमाइला ने ये सब कुछ बता दिया।
वरना तो हम बगैर सोचे समझे इसका रिश्ता तय कर देते। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे, बेटा तुमने आखिर ये सब कैसे मालूम कर लिया कि वो लड़का ठीक नहीं है? इससे पहले तो तुम खामोश थी। मैं चुप हो गई। अब्बा को क्या कहती कि इस घर में रहने वाला वो जिन जो मुझ पर हावी हो चुका है, इसने ही मुझे ये सब बताया है। अब वो मेरी शादी कहीं भी होने नहीं देगा। फिर उस रात मैं सोई, कोई तेज़ खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया था। ये वही खुशबू थी जो इस जिनज़ादे के वजूद से आती थी। मैं किसी बुत की तरह उठी और उठकर उसी कमरे में जा पहुंची। वहां गई तो हैरान रह गई। पूरे कमरे में दिए रोशन थे। आज आने वाली खुशबू कल से भी ज़्यादा तेज़ थी। जिनज़ादे के कहने लगा, तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। अब देखना मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी कैसे बदलता हूँ। तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे और तुम्हारे अब्बा, जिन्हें तुम दिलो जान से चाहती हो, इन्हें फिर काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे। वो मुझे नए नए ख्वाब दिखा रहा था। मैं यही तो चाहती थी, अपने माँ बाप के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना हो। जिनज़ादे की मदद से मैं ये सब कर सकती थी। फिर इस रात मैंने उससे अपने दिल की बात कही। उसे कहा कि वो किसी भी तरह करके अम्मा अब्बा के हालात बदल डाले। मैं इन्हें यूं परेशान नहीं देख सकती। जिनज़ादे ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे घर के हालात बदल देगा, लेकिन मुझे इससे वादा करना होगा कि मैं उससे मिलने रोज़ाना इसके कमरे में ज़रूर। उसकी बात मान ली थी। फिर दूसरे दिन मैं हैरान रह गई जब अब्बा खुशी खुशी दुकान से लौटे। कहने लगे कि दुकान का मालिक मेरे काम से बहुत खुश है, उसने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी सरमाया है तो मैं एक दूसरी दुकान खोल रहा हूँ, तुम इसमें वो सरमाया लगा दो, फिर हम पार्टनरशिप पर एक मकान दुकान बना लेंगे। अम्मा मायूसी से कहने लगी, हमारे पास तो कोई सरमाया नहीं, दुकान पर कैसे लगाओगे? चंद पैसे ही रखे हैं, वो भी शुमाइला की शादी के लिए। मैं इनकी बात खामोशी से सुन रही थी, इसलिए अम्मा से कहने लगी, अम्मा पैसे आप अब्बा को दे दें, अगर दुकान चल पड़ी तो अब्बा इससे दुगना कमा लेंगे। अब्बा भी इस बात पर राज़ी थे। फिर मेरे कहने पर अम्मा ने वो सारी रकम अब्बा के हवाले कर दी। फिर तो अब्बा पता ही न चला कि घर के हर अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। अम्मा कहती, ये घर तो हमें रास आ गया है, देखो तो सही, इतनी जल्दी तो किसी बादशाह के हालात भी नहीं बदलते और हमारे घर में रुपए पैसे की रेल पेल हो गई है। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ उसी जिनज़ाद की वजह से। मैं समझ सकती थी कि वो कौन हो सकता है और मैंने तुम लोगों से छुपकर एक घर खरीद लिया है। चंद पैसे घर के बचे हुए थे, वो मिलाकर और जो मुनाफा हुआ था मालिक ने मुझे वो सारा दे दिया है। इससे मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया है। ये घर बड़ा है और ना जाने इसका मालिक कब आ जाए, इसी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। बाकी बात सुनकर खौफ से कांपने लगी। कैसे उन्हें कहती कि इस घर से जाना मुमकिन नहीं, वो जिनज़ाद मेरी जान ले लेगा या फिर खौफ से मुझे मार डालेगा। लेकिन माँ और कशमाला को सामान बांधे देखकर मुझे बार बार कहते, तुम भी सामान बांधने में मदद करो। लेकिन मैं तो किसी मुजस्मे की तरह बैठी रही। मेरा जिस्म तो हरकत नहीं कर पा रहा था। बस एक रात उस घर में रुकना था, उसके बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना था। जागती आंखें लिए मैं इस रात बस्तर पर पड़ी थी जब मुझे तेज़ खुशबू के झोंके ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। गोया आज फिर वो जिनज़ादा मुझे उसी कमरे में बुला रहा था। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो उसके गज़बनाक निगाहों का सामना न कर पाई। वो घूरते हुए मुझे कहने लगा, आखिर तुम इंसान होते ही एहसान फरामोश हो। तुम्हारे बाप की किस्मत बदली तो तुमने फ़ौरन ये घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अगर तुम इस घर से गई तो मैं तुम्हारे वजूद में समा कर हमेशा के लिए तुम्हें अपना कैदी बना लूँगा। मैं खामोश थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसे कहने लगी, लेकिन तुम एक जिनज़ाद हो, भला मैं एक इंसान होकर तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? ये मुआशरा हमें कबूल नहीं कर पाएगा।
मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने मुझसे कोई रिश्ता कायम कर भी लिया तो कभी भी वो ज़िंदगी गुजार नहीं पाऊंगी जो मेरे रब ने मुझे अता की है। तुम्हारे लिए भी उसने कोई जोड़ बना रखा होगा जो तुम्हारे ही किसी कबीले की होगी। वो एक जिन्स शादी होगी जिससे तुम शादी करोगे। अभी तुम जाकर उसे तलाश कर सकते हो। वो ज़रूर तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। वो मेरी बात सुनकर इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि मेरे लिए भी खुदा ने कोई जोड़ बना रखा है। मैंने धीमे लहजे में उसे समझाया, हाँ, क्योंकि इंसान के लिए इंसान ही बना है और जिनसात के लिए कोई जिनसाती। जिस तरह मेरे लिए उसने किसी मर्द को मुंतखब किया होगा, इसी तरह तुम्हारे लिए भी कोई जिनसाती बनी जो कहीं ना कहीं तुम्हारी मुंतज़िर होगी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, मैं इस रात अपने कबीले में जाऊंगा और वहाँ जाकर अपने जोड़ की कोई जिनसाती देखूंगा जो सिर्फ मेरे लिए होगी। लेकिन अगर वो मुझे ना मिली तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट आऊँगा। तब तक तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे जैसी कोई नेक जिनसात अगर मुझे मिल गई तो इसके साथ मेरी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। फिर मैं इंसानों की दुनिया में नहीं रहूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो मेरी बात सुनकर मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जल्द ही उसे उसकी नेक जिनसाती मिल जाए ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। इस इलाके में घर लिया था वो बहुत साफ सुथरा था। 2 कमरों का छोटा सा घर था लेकिन वो हमारा अपना था। घर की छत मिल जाना भी बहुत बड़ी बात थी। अम्मा अब्बा की खुशी एक दिन में हैरान रह गई जब अब्बा कहने लगे कि दुकान का मालिक अपने बेटे के लिए किसी लड़की की तलाश में था। उसने शुमाइला बेटी को देखा तो वो रिश्ता लेकर आ रहा है। उसका बेटा बहुत नेक है, नमाजी है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। मैं बिल्कुल खामोश थी। सोचने लगी कि कहीं वो जिनसात मेरी ज़िंदगी में वापस ना लौट आए। मैं उसकी इजाज़त के बगैर शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन कई दिन गुजर गए, वो जिनसात ना आया, ना ही उसका कोई एहसास मेरे इर्द गिर्द महसूस हुआ था। फिर मेरी सादगी से शादी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाला वो इंसान इस कदर नेक फितरत रखता होगा। फिर एक रात जब मेरा शौहर घर पर नहीं था, बारिश के आसार नज़र आ रहे थे। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोए थे, इसलिए इन्हें उतारने छत पर गई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो तेज़ खुशबू का झोंका मेरे वजूद से टकराया था। मैं खौफ से सुन खड़ी थी क्योंकि ये वही खुशबू थी जो इस जिनसाते से महसूस होती थी। लेकिन जैसे हैरान रह गई, एक मर्द और एक औरत छत पर मौजूद थे। वो जिनसात ही था जो मर्द बनकर मेरे सामने खड़ा था। फिर वो कहने लगा कि मुझे मेरे जोड़ की जिनसाती मिल गई है। तुम ठीक कहती थी कि मेरे लिए भी कोई जिनसाती ज़रूर बनी होगी। कबीले में वापस जाते ही सरदार की बेटी से मेरी शादी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं दुआ करता हूँ तुम भी अपने शौहर के साथ खुश रहो। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों मेरे सामने से गायब हो गए। आज मेरा वजूद हल्का फुल्का हो गया था। एक हफ्ते बाद मुझसे छोटी कशमाला की शादी थी। अब मैं इसकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से कर रही थी। मेरा शौहर मेरे नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद ये मेरे सब्र का ही फल था जो मैंने अपने लिए अच्छे वक्त का इंतज़ार करके हासिल किया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्यारियों को साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।